good morning all of you. Today discuss quadratic equation exercise 4.4 from NCERT book. Question number 1. Find the nature of the roots if the real roots exist. Find them. We know that nature of the roots. If a simple form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, then discriminant d is equal to b square minus 4ac. First nature of the roots are if d is greater than 0, roots are real and distinct. If d is equal to 0, roots are real and equal, and d is less than 0, therefore no real roots. So first of all, find nature of the roots of this equation. Equation is 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. In which quadratic equation? What is the value of a? 2. What is the value of b? What is the value of c? 5. Good. So first of all, write a is equal to 2, b is equal to minus 3, and c is equal to 5. Now find discriminant. So d is equal to b square minus 4ac. For nature of the roots, b is equal to minus 3 का whole square minus 4 into a or into c, and 9 minus 5 to the 10 for the 40. 9 minus 40 is equal to minus 31, which is less than 0. Which is less than 0. So if b is less than 0, no real roots. No real. If b is greater than 0, then roots are exist. So it is your answer. अब आप इसका रूट्स नहीं निकालें, बस यही पर आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसी का 1 था. ये क्वेश्चन नंबर 2 में 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 4 is equal to 0. Now find nature of the roots. A is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3, and c is equal to 4. A is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3, or c is equal to 4. b square minus 4ac. b का वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is equal to 3 and c is equal to 4. b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3. 16 इंटू 3 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 48 इक्वल टू 0. अगर d 0 हो, इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना. इसका हम ऊपर लिख देते हैं.
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का d आया है 0, तो रूट, तो इसका रूट से एग्जिस्ट करेगा। अगर d 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, रूट्स आर एग्जिस्ट। यहाँ पर लिख देंगे कि if d is less, d is equal to 0, root are real and equal, यानी इसका दोनों x रूट जो आएगा आंसर इक्वल आएगा। तो अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है फाइंड देम, यानी रूट्स फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला का अब यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं क्या होता है इसका? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, यानी माइनस b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस b इक्वल टू 0 बाय 2 इंटू a इक्वल टू 3, है ना। अब आप माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 और बाय 6 2 3। अब आप इसको लिख सकते हो 2 रूट 3 प्लस माइनस, क्योंकि दोनों में प्लस में ले सकते हैं माइनस में, तो 2 रूट 3 बाय 3 यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या 2 रूट 3 डिनोमिनेटर को रूट 3 इंटू रूट 3 कर दो, यानी 2 बाय रूट 3। क्योंकि ये प्लस माइनस है तो बोथ रूट्स आर x इक्वल टू 2 रूट 3 और 2 रूट 3, दोनों सेम आंसर हो, है ना। 2 रूट 3 है, दो रूट्स है, तो रूट दिखा देंगे। इट इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 1 का 3 तो सॉल्व हो जाएगा, 1 में 3 है, 1 का 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। बोलिए हरे राम। हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots, so that they have two equal roots। अब यहां पर k का वैल्यू फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसका दो इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो टू इक्वल रूट्स कब होगा? when equation have equal roots then d is equal to 0। मेन हमको d is equal to 0 से ही k का वैल्यू फाइंड करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k if equation have two equal roots. If equation have two equal roots, equation is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 plus 3 is equal to 0. अब यहां पर इस k का वैल्यू फाइंड करना है. k का किस वैल्यू के लिए both roots of this equation are equal. Now a is equal to 2, b equal to k and c is equal to 3. Then if equation have equal roots, b is equal to 0 means b square minus 4ac is equal to 0, in which equation b is equal to k का square minus 4 into a is equal to 2 and c is equal to 3 equal to 0. k square minus 4 into 2 8 or 8 into 3 24 is equal to 0 or k is equal to 24. k square is equal to 24. So k is equal to root under 24. 24 4 into 6 and plus minus 2 root under 6. It is your simplest one. k का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 2 रूट 6. प्लस माइनस इसलिए देते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म. k square is the quadratic form. ओके ये समझ गए सब लोग. हरे राम. अमृत. ओके आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is find k if equation have two equal roots. kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 plus 6 is equal to 0. अब यहां पर आपको खुद सॉल्व करना है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करो तो
हाँ क्या आया आपका के का वैल्यू क्या आया? के का वैल्यू इसका फाइंड करके बताओ। बोर्ड में भी लिखे ही नहीं है, केवल इक्वेशन है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इजकल टू 0। आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इजकल टू 0। इससे के का वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो हम क्वाड्रेटिक का फॉर्म में अरेंज करेंगे। के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस टू, तो माइनस टू के एक्स और प्लस 6 इजकल टू 0, प्लस 6 इजकल टू 0, के इजकल टू 6 आया। देखो ठीक है, a इजकल टू के, b इजकल टू माइनस 2k और c इजकल टू 6। if equation have equal roots, so d is equal to 0 and if this is not equal to 0 or d is equal to b square minus 4ac is equal to 0, value of b minus 2k का whole square minus 4 into a k और c 6 इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24k इक्वल टू 0। नाउ 24k इक्वल टू 0। अब आप यहां पर 4k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0, दो केस होगा, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 बाय 4 तो 0 और k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 6 योर आंसर। बिकॉज अगर k का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, 0 इज नॉट पॉसिबल, तो k इक्वल टू 6। समझ गए ये क्वेश्चन? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कोई पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 3 कैसे इसको बनाएंगे? उसके बाद क्वेश्चन इज, अब पढ़े, क्या ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth. It is possible or not?
as it is possible a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find length and breadth. Now, in question number 3, draw a rectangular mango grove. Name A, B, C and D. Whose length is twice its breadth. Breadth को मान लिए x, the length 2x और area is equal to 800 meter square. एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर. तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? तो हम मान लिए लेट ब्रेथ बी एक्स, the length is 2x, area is equal to 800 मीटर स्क्वायर. एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल टू 800. L is equal to 2x और इंटू x is equal to 800. कितना आ गया? 800. अब ये 800 हमको फाइंड करना है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 400 इज इक्वल टू 20. हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं क्योंकि लेंथ नेगेटिव इम्पॉसिबल. तो आप 20 माने, इसका लेंथ इज इक्वल टू 2x आणि 2 into 20 आणि 40 मीटर और ब्रेथ x is equal to 20 meter. It is your answer. Okay. Next question number 4 and 5. Fourth question is the following situation possible? If so, determine their present age. इसका present age को find करना है. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in the year was 48. क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? आ? 48 is less than 0. मतलब दिखाओ. हाँ दिखाओ. चलिए हम देख लेंगे. चलिए ये पॉसिबल नहीं है. चलिए ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आइए. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? And area 400 meter square. If so, find its length and breadth. क्या ये पॉसिबल है? कौन फॉर्मूला लगा देंगे?
A rectangular park of perimeter 80 मीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ऐसे देखो, अगर हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना दिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे है, हम लेंथ को L और इसको B मान लिए, पेरीमीटर यानी 2 इंटू L प्लस B इजकल टू 80 मीटर दिया हुआ है, एंड एरिया इज 400 मीटर, और इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो L प्लस B आपका निकल जाएगा 40, तो L इजकल टू 40 माइनस B, और L का वैल्यू यहां पुट कर दो, एरिया L इंटू बी इजकल टू 400, और B रहने दो, L के प्लेस पर 40 माइनस B, हम X के फॉर्म में नहीं अरेंज किए, तो 40B माइनस B स्क्वायर इजकल टू 400, तो B स्क्वायर माइनस 40B और प्लस 400 इजकल टू 0। इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हम B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कितना आया? वो दोनों इक्वल आ गया, लेंथ ब्रेथ इक्वल आ गया है ना। चलिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है,